तो वेलकम बैक गाइस। आज हम बात करेंगे प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग इन 2026 के बारे में। अभी आपको पता होगा कि एवरीबडी इज मूविंग टू privacy safe guidelines and most of the companies are shifting their budgets to AI marketing. So what's the future 2026 में कैसे प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग को करना है, सीखना है? We'll talk about all that, and I want you to know that you're burning your money if you are still running the strategies which were used in 2022 or 2023 or 2025. So yeah, stop burning your budget with 2022 tactics. It's time to master the post cookie reality of 2026. Okay, so if we start talking about that, your 2022 programmatic strategy will burn money in 2026 because the set it and forget it era is dead. अब आप ऐसा नहीं सोच सकते कि यार मैंने टारगेटिंग सेट कर दी, मैंने थोड़ी बहुत ऑप्टिमाइजेशंस कर दी एंड इट्स ऑल डन. सिग्नल लॉस हैज़ चेंज द रूल्स ऑफ द गेम एंटायरली. अब सिग्नल लॉस क्या होता है? 2024 क्रोम कुकी डेप्रिसिएशन मेड ओल्ड स्कूल रीटारगेटिंग ऑब्सोलीट. पहले क्या था कि आप जो भी वेबसाइट पे विजिट करते थे, आपकी कुछ कुकीज़ सेव होती थी एंड यूज़र्स यूज्ड टू रिट्रैक्ट फ्रॉम दोज कुकीज़ एंड टारगेट देयर एड्स टू यू. बट 2024 में क्रोम कुकी डेप्रिसिएशन हो गया, इफ़ यू आर अवेयर, बिकॉज every big company including Apple, Google, they are moving towards privacy first guidelines, and big DSPs like Trade Desk are like the game changers in that. They have introduced UID 2.0, जिस वजह से we cannot retarget the way we used to earlier. Even the targeting has changed. So privacy first guidelines have changed. Regulatory shifts in India, Europe, US now mandate consent driven data usage. You, like, every advertiser must be having consent of customers that they can advertise to them as per their own consent. पहले क्या था कि आप कोई भी वेबसाइट पे जाते थे, आप अलाउ क्लिक करते थे एंड योर डेटा यूज टू बी फेच्ड एंड एडवर्टाइजर्स उस डेटा को यूज़ करके आपको कुछ एड्स दिखाते थे. बट थिंग्स हैव चेंज रैपिडली. पीपल आर मोर प्रिवेसी कंसर्न. उन्हें पता होता है कि व्हेन they are giving their consent to certain regulatory, certain websites, and when do they want to see which kind of ad or not. So this shift has happened. Modern buyers focus on human centric signals rather than just browser footprints. अभी ह्यूमन सेंट्रिक हो गया है सब कुछ. पहले सिर्फ ब्राउजर जो हमें कुकीज देता था, उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे वी यूज टू वर्क. So result क्या है? Brands that haven't even evolved are seeing CPMs rise while conversions drop to near zero. अभी नए ब्रांड्स जो आए हैं उनका CPM इतना हाई हो गया है कि दे आर सो वरिड कि भाई हम इस मार्केट में टिकेंगे कैसे. कन्वर्जन कुछ आ नहीं रही, कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशन इतना हाई है. सो थिंग्स आर गेटिंग चेंज, थिंग्स आर इवॉल्विंग at a very rapid pace. So first party data is undisputed बादशाह right now. अगर आपके पास अपना खुद का CRM डेटा है, ईमेल लिस्ट हैं, आपके पास फर्स्ट पार्टी डेटा अवेलेबल है, then you are a बादशाह in current market which is going on right now. Because if you own the data and the consent, यू ओन द प्रोग्रामेटिक रिजल्ट्स कंप्लीटली. और जो बड़ी कंपनियां हैं जिन्होंने बहुत टाइम से अपना फर्स्ट पार्टी डेटा एड्स दिखाकर कलेक्ट कर लिया है, दे आर रूलिंग द एडवर्टाइजिंग वर्ल्ड, स्पेशली द प्रोग्रामेटिक राइट नाउ. इसमें क्या है? द कस्टमर मैच. इफ यू लेवरेज योर ओन CRM डेटा इन DV360 फॉर हाई प्रिसीजन टारगेटिंग, देन यू कैन रूल द गेम फ्रॉम डे वन इटसेल्फ. अगर आपके पास अपनी ईमेल लिस्ट रेडी है, अपना CRM डेटा रेडी है, then of course in DV360 in today's day and age you can rule. Then using UID 2.0, जो ट्रेड डेस्क का UID 2.0 है, you can use that for email hash based tracking across the open web. Okay, इसमें क्या होता है? You do not track the cookies and pixels provided by the websites, rather you use this email hashing based tracking, and using that you can target your ads on open web across anywhere on internet. अगर आपके पास फर्स्ट पार्टी डेटा है, then your CPMs are comparatively very low. Ads served to known first party audiences consistently deliver higher conversion rates, और conversions भी बहुत हाई आती हैं at lower cost. So that's a win-win situation if you have your own data available right now.
Data enrichment, connecting offline purchase data to online programmatic bids for a 360-degree view. क्या हो गया है कि कनेक्टिंग योर ऑफलाइन परचेज डेटा, अगर आपका कोई स्टोर है, अगर आपका कोई बिजनेस रनिंग है एंड यू हैव सम ऑफलाइन डेटा, यू कैन एक्सपोर्ट दैट ऑनलाइन एंड यू कैन बिल्ड योर ओन ऑडियंसेस लिस्ट, and then you can use programmatic bids for a 360-degree holistic view. That's how marketing has been evolving right now. So if you are into programmatic or if you're getting into it, you have to evolve very rapidly because things are changing every month, every week, I would say. Let's talk about contextual targeting 2.0, the smarter comeback. Now what has happened is AI is now analyzing real time reading patterns and intent to place ads where they actually matter. पहले की तरह नहीं कि आप टारगेटिंग सेट कर रहे हो और आपको पता भी नहीं है कि आपकी एड कहाँ शो होने वाली है. दैट्स नॉट द केस राइट नाउ. सो it goes by sentiment analysis. Now AI judges your sentiments, your brand safety, avoiding negative news while targeting positive content. आप बेसिक टारगेटिंग लाइक ब्रांड सेफ्टी एंड ऐप URLs ये सब सेट कर सकते हो, but sentiment analysis is being done by AI and it is really good at it. It knows when your ad should be shown to which person at which location. So the second is cookie free reach. Scale your campaign across the web without needing a single third party cookie. And that's the most amazing part. As people are becoming more privacy safe, cookie free reach is the future. Real time intent, placing EV ads on best electric cars in 2026 articles catches पीक इंटरेस्ट. ओके, आज के टाइम पे जो चीज चल रही है उसके ऊपर आपको ज्यादा पैसा लगाने की जरूरत है, रादर देन going by the old methods where you go by the contextual targeting of, let's say, their habits, their lifestyle choices. That is also true, but in contextual targeting, real time intent, जो intent लोगों का change हुआ है after AI, after 2025 specifically, based ऑफ दैट इंफॉर्मेशन, ये एक बहुत ही important point है. Then reading patterns have changed. Understand how a user interacts with content to predict their next purchase move. आप उनकी जर्नी को ट्रैक करो and then find out. And you don't even have to find out. There are tools these days which help you analyze these reading patterns and then bid your money on certain ads and location of ads and what point a customer would be interested in. And treat AI bidding as your assistant, not your decision maker. This is an important point to understand, that automation is powerful, but blindly following smart bidding leads to budget waste. Okay, real time bidding, AI adjusts bids instantly based on likelihood of a conversion. That's what real time bidding now is. Signal overload, humans handle the strategy, AI handles the math of million bid permutations. ह्यूमंस हैंडल द स्ट्रैटेजी. आप अब सिर्फ वो मार्केटर नहीं रह सकते जिसका काम है कैंपेन में क्रिएटिव अपलोड करना, टारगेटिंग सेट करना एज पर द मीडिया प्लान्स. यू हैव टू बिल्ड अप स्ट्रैटेजीज बिकॉज ये सब काम एआई आपसे बहुत बेहतर कर रहा है. सो योर मेन focus should be building strategies, how marketing works, how these strategies work, because AI handles math of million bid permutation जो humanly हमारे लिए कभी भी possible नहीं था. And we are moving towards hybrid approach. Start with a manual or enhanced CPC to gather initial data before flipping the automation switch. अभी सीधा automation भी नहीं करना है आपको. If you are a new advertiser, start with manual or enhanced cost per click and gather some initial data before switching to automation, because you will be wasting your budget honestly if you directly start with smart bidding and this automated bidding, because the campaign does not have enough data right now to know कि भाई कहाँ पैसा लगाना है, कितना पैसा लगाना है. ये 2026 की अप्रोच है, थोड़ी सी एडवांस है आज की वीडियो, बिकॉज मैं जब से ये प्रोग्रामेटिक इंडस्ट्री में हूँ पिछले 7-8 साल से, मैंने नोटिस किया है कि थिंग्स हैवंट चेंज सो रैपिडली एज दे हैव दिस ईयर. सो इस वजह से मेरा मन किया यार इसके बारे में एक वीडियो बनानी चाहिए. सो दैट्स व्हाट इट्स अबाउट. डू नॉट गेट ओवरवेल्म्ड बाय द इंफॉर्मेशन आई एम शेयरिंग, बिकॉज ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल स्टार्ट नहीं कर सकते हो, कहीं से भी आप कर सकते हो और बेसिक्स जानना बहुत ज़रूरी है.
बट दिस इज जस्ट अप्रोच विच इज गोइंग ऑन इन 2026. सो यू शुड बी अवेयर आपके आगे क्या आने वाला है. ऐसा नहीं कि आप बस हवा में डेफिनेशंस याद करके इंटरव्यू देने चले गए और आपको पता ही नहीं है भाई अभी चल क्या रहा है इंडस्ट्री के अंदर. Then the Performance Max trap. The Performance Max for display video 2025 offered ease but sacrifices granular control for scale. अभी ज़्यादा डिमांड जेन का ट्रेंड है. टू बी ऑनेस्ट परफॉर्मेंस मैक्स डिस्प्ले वीडियो 2025 तक था. इट यूज टू ऑफर ईज बट सैक्रिफाइस्ड ग्रैनुलर कंट्रोल. आपके पास कोई कंट्रोल नहीं बचता था टारगेटिंग सेट करने का. कहीं भी ऐड दिख रहा है भाई. सो दैट इज व्हाट अ कॉशियस स्टेप वाज. सो वी नीड टू अवॉइड दैट. वो AI ड्रिवन था ना भाई. प्रॉपरली परफॉर्मेंस मैक्स AI ड्रिवन था. सो इट्स बेटर टू मूव टू डिमांड जेन रादर देन P मैक्स. AI bidding requires 50 to 100 conversion data threshold as I already told you. अगर आपकी 0 से 20 कन्वर्जन है तो परफॉर्मेंस लेवल आपका इनएक्यूरेट हो सकता है. यू शुड गो विद मैनुअल CPM या मैक्सिमाइज क्लिक्स. इस पूरी स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है समझने के लिए. अगर आप एक नए मार्केटर हो, आपसे इंटरव्यू में पूछ सकते हैं कि भाई कैसे कर रहे हो ये, आप बिडिंग कैसे सेट करते हो, क्या स्ट्रेटजी यूज करते हो बिडिंग के लिए और किस बेसिस पे करते हो. तो कुछ डेटा तो हो आपके पास बताने के लिए. अगर मंथली कन्वर्जन 0 से 20 आ रही है तो इनएक्यूरेट हो जाएगा परफॉर्मेंस डायरेक्ट ऑटोमेटेड बिडिंग लगाकर. मैनुअल CPM जाएंगे, मैक्सिमाइज क्लिक्स चूज करेंगे. 21 to 50 कन्वर्जन आ रही है तो लर्निंग फेज में रहेगा. एनहांस CPC यूज करेंगे, एनहांस कॉस्ट पर क्लिक यूज करेंगे. 50 से 100 कन्वर्जन आ रही है अब हमारे पास. ऑप्टिमाइजेशन जोन में आ गए हैं अब हम थोड़ा. तो टारगेट कॉस्ट पर एक्विजिशन लगा देंगे. पहले देख लेंगे कितना हमको पर कन्वर्जन कॉस्ट पड़ रहा है. उस बेसिस पे 2-4 पैसा ऊपर करके हम अपना टारगेट CPA सेट कर देंगे. 100 से ऊपर कन्वर्जन आ गई, अब परफॉर्मेंस हाई हो गई है. टारगेट रिटर्न ऑन एड स्पेंड लगा देंगे कि जितना पैसा मेरी एड्स पे लग रहा है उसका मेरे को 20% 25% रिटर्न चाहिए अब, या 100% रिटर्न चाहिए अब. अगली बात करते हैं. कनेक्टेड टीवी इज द प्रीमियम प्ले ग्राउंड फॉर ब्रांड बिल्डिंग राइट नाउ. हर किसी को कनेक्टेड टीवी पे ऐड चलानी है क्योंकि स्मार्ट टीवी सबके घर पे आ गया है भाई. सब नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, Amazon प्राइम देख रहे हैं अपने टीवी पे. तो मूविंग फ्रॉम स्क्रॉलिंग ऑन अ फोन टू लीनिंग बैक ऑन सोफा चेंज द एड इम्पैक्ट एंटायरली. और ये हो चुका है भाई. मेरे घर पे मेरे मम्मी पापा हु आर above 50 right now, they are always watching TV with Netflix, Amazon, YouTube, everything. They are avoiding their screen time on phone and rather spending family time watching TV. Even when families watch big sport games like IPL, FIFA together. So it's a great opportunity for advertisers to showcase family ads. हाई कंप्लीशन रेट होता है इसके अंदर. क्या सबसे खास बात है, एड कंप्लीशन रेट VTR कंसिस्टेंटली हिट 85 से 90% ऑन बिग स्क्रीन पे. ज़्यादातर लोग स्किप ऐड नहीं दबाते. फुल स्क्रीन इमर्शन होता है. यूजर्स आर एक्टिवली वॉचिंग कंटेंट लीडिंग टू 34% हायर ब्रांड रिकॉल देन मोबाइल डिस्प्ले. ऑफ कोर्स टीवी पे जब ऐड चलती है ना भाई तो आपकी ऐड ज़्यादा देखी जाती है, आपका ब्रांड रिकॉल वैल्यू बढ़ता है. तो दैट इज़ अ इम्पॉर्टेंट point to note in connected TV. Premium CPMs होते हैं. Expect to pay 400 to 800 plus CPM, making it a brand building tool, not a mass reach play. Programmatic control होता है. Use same first party audiences from mobile campaigns to target users on their smart TV. आप वही ऑडियंस यूज कर सकते हो जिनको आप मोबाइल पे ऐड दिखा चुके हो. Connected TV is a great tool introduced by programmatic. डायरेक्ट आउट ऑफ होम की बात कर लेते हैं. प्रोग्रामेटिक डायरेक्ट आउट ऑफ होम इज द हिडन जेम ऑफ 2026 मार्केट. होता क्या है, एयरपोर्ट्स पे, मॉल्स पे, मेट्रोज में देयर आर रियल टाइम डिजिटल स्क्रीन यू कैन बाय विद अ फ्यू क्लिक्स. आप वहाँ पर ऐड देखते हो. कई बार उसके ऊपर स्कैनर भी दे देते हैं वो लोग. आप स्कैन करते हो, वेबसाइट पे पहुँचते हो एंड योर डेटा इज स्टोर्ड कि भाई डायरेक्ट आउट ऑफ होम से आया है कस्टमर. डायनामिक क्रिएटिव होते हैं. इट शोज ऑफिस टारगेटेड एड्स ड्यूरिंग रश आवर्स, फैमिली टारगेटेड एड्स इन द इवनिंग. मॉल में जाते हो, आपको ऐड दिखती है H&M की, आप स्कैन करते हो, आपको सीधा वो टॉप दिख जाता है जो आपकी बीवी के लिए आपको पसंद है, आप बाय कर लेते हो. लोकेशन प्रिसीजन, बाइंग स्पेसिफिक स्क्रीन्स इन प्रीमियम लोकेशंस लाइक T3 टर्मिनल और हाई एंड शॉपिंग मॉल्स. T3 मॉल पे गए हो, उनको पता है कि भाई ये कुछ ना कुछ मिस कर रहा होगा, एक इंटरनेशनल ट्रैवल करने वाला है, हो सकता है या फिर ये वापस अपने देश जा रहा है तो इसको कुछ गिफ्टिंग लेनी हो. तो ऐसी लोकेशन बेस्ड टारगेटिंग आप कर सकते हो. आई एम जस्ट गिविंग यू अ रैंडम एग्जांपल, इट कुड बी समथिंग एल्स आल्सो.
Early mover advantage. Smart advertisers are securing premium inventory at lower cost before the market becomes saturated. फिलहाल डायरेक्ट आउट ऑफ होम के प्राइजेस रिलेटिवली बहुत लो हैं, तो एडवर्टाइजर्स हु आर यूजिंग दिस, दे आर सिक्योरिंग प्रीमियम इन्वेंट्री, ठीक है, क्योंकि बहुत बढ़िया इन्वेंट्री है एयरपोर्ट्स के ऊपर, मॉल्स के अंदर, एंड दे आर टेकिंग अर्ली मूवर एडवांटेज. ओमनी चैनल सिंक है भाई. रीटारगेट यूजर्स ऑन देयर मोबाइल फोन आफ्टर दे हैव पास्ड अ स्पेसिफिक डिजिटल बिलबोर्ड. अगर कोई बंदा एक लोकेशन से पास करके गया है, आप उसको रीटारगेट कर सकते हो अपनी एड. Modern measurement must go beyond the click to stay relevant. If you're still judging campaign success by click through rate alone, you are playing a losing game. Because marketing mix modeling, which is statistical modeling to understand how programmatic contributes alongside TV and social, is the game right now. Data clean rooms, Google Ads Data Hub, and Amazon Marketing Cloud allows privacy safe measurement. Incrementality testing, the only honest way to measure impact by comparing a test group to control the group. बहुत advanced level बातें, I know some people might be getting overwhelmed by all this, but just listen to it. You'll get a hold of it eventually. Attention metrics, measuring the actual seconds a user looked at the ad using tools like Adelaide or Lumen. Adelaide and Lumen are using AI based technology to measure the actual seconds a user looked at the ad, and that is amazing. We are entering a new era of digital advertising. Creative effectiveness drives 49% of total programmatic impact. ठीक है, द क्रिएटिव फैक्टर, नियरली हाफ ऑफ योर कैंपेन सक्सेस इज डिटरमाइंड बाय द क्वालिटी ऑफ विजुअल एंड द मैसेज. सबसे बड़ी बात होती है कि अगर आपका क्रिएटिव बढ़िया, आपका विजुअल बढ़िया, आपका मैसेज बढ़िया, तो आपकी एड चलनी ही चलनी है बॉस. Dynamic creative optimization, DCO, is the future and the present right now. Using AI to swap headlines and images automatically for different audience segments. आप एक लिस्ट ऑफ हेडलाइन डिस्क्रिप्शन दे देते हो, डीसीओ अपने आप डिसाइड करता है कि किस कस्टमर को कौन सी हेडलाइन ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी, कौन सी डिस्क्रिप्शन ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी. इट मेक्स दीज permutation combinations, and these combinations are shown to different people based on their previous behavior with websites, on ads, etc. फ्रीक्वेंसी कैपिंग, यू शुड ऑलवेज अवॉइड एड फटीक. बार बार एड दिखाने का कोई यूज नहीं है. फ्रीक्वेंसी कैपिंग लगा के रखो. लिमिट एक्सपोजर टू 3 to 4 times a day at max. Attention score, high impact, high attention creative lead to significantly lower cost per acquisition compared to standard banner sets. अगर आपका बढ़िया सा आपका कोई क्रिएटिव बन गया है, आपका सीपीए लो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि लोगों की अटेंशन ग्रैब होगी, वो क्लिक मारेंगे, हो सकता है खरीद लें. एंड इसका बढ़िया से आपको सबसे बढ़िया एग्जांपल देते हो. कंपनी है ब्ला ब्ली ब्लू, ये अपनी एड्स चला रही है इंस्टाग्राम पे, अपनी एड्स चला रही है गूगल एड्स के थ्रू, डिफरेंट का. एंड इनका सबसे बढ़िया चीज़ क्या है, इन्होंने ना सोशल में इन्फ्लुएंसर्स पकड़ लिए हैं. अब ये अपने परफ्यूम्स उन लोगों को देते हैं एंड उसको इस वे में प्रेजेंट करके अपनी एड को दिखाते हैं. लाइक इनके परफ्यूम है ओल्ड मनी, एंड देयर आर सम अदर परफ्यूम्स दैट दे आर टारगेटिंग यूजिंग मेटा एड्स, यूजिंग गूगल एड्स, प्रोग्रामेटिक. And they have so amazing creatives that it drives you to click on the ad and makes you to purchase it for once. So that's the impact these brands have. Now targeting can find the person, but only the creative can make them care. That's true. The smart buyer mindset, strategy before platform. सबसे बढ़िया बात आपको बताने वाला हूँ, स्ट्रैटेजी सीख लो भाई. स्ट्रैटेजी के बारे में और वीडियोस में बनाने वाला हूँ. 2026 में अगर सक्सेसफुल बनना है, स्ट्रैटेजी सबसे इंपॉर्टेंट है. टूल तो कोई भी सीख जाएगा, आप काम करते करते भी सीख जाते हो. एंड एज दे से, अ पर्सन who walks the path, who loves the path, will walk more than the person who is walking there for the destination. So अगर आपको पसंद आ जाएगा ना ये काम, आपको स्ट्रैटेजी बनाना कि मैं ऐसा कर क्यों रहा हूँ, तो यू विल ऑटोमेटिकली गो इनटू अ स्ट्रैटेजी माइंडसेट यूजिंग विच यू कैन ऑलवेज सर्वाइव एनी गेम. नो मैटर एआई आ जाए या उसका बाप भी आ जाए, तो आपको आपकी जॉब को कुछ नहीं बोलने वाला, क्योंकि आप अपने काम से प्यार करते हो भाई. आप मूव करते जाओगे टाइम के साथ आगे. चैनल स्ट्रैटेजी फर्स्ट, डिसाइड वेयर योर ऑडियंस लिव्स. कहाँ है आपकी ऑडियंस?
कनेक्टेड टीवी देख रही है, मोबाइल देख रही है, डायरेक्ट आउट ऑफ होम देख रही है, डिपेंडिंग अपॉन एडवर्टाइजर टू एडवर्टाइजर। बिफोर यू पिक अ डीएसपी, डीएसपी तो हम चूज कर ही लेंगे। असेट बिल्डिंग, बिल्ड क्लाइंट फर्स्ट पार्टी डेटा एज अ लॉन्ग टर्म कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अपने खुद की लिस्ट बनाना स्टार्ट करो, ऑडियंस लिस्ट होनी चाहिए, आपके पास फर्स्ट पार्टी लिस्ट होनी चाहिए, क्योंकि प्रिवेसी सेफ वर्ल्ड के अंदर हम लोग ऐसे एरा में मूव कर रहे हैं जहाँ पर हो सकता है थोड़े टाइम बाद आप ये जो हम थर्ड पार्टी ऑडियंसेस खरीदते हैं और ये सब करते हैं, वो में भी पॉसिबल भी ना हो, हम सिर्फ उन्हीं लोगों को ऑडियंस दिखा पाए जो खुद अपने कंसेंट से हमारी वेबसाइट पे आए हैं। Curiosity is mandatory. Best practices change every 6 months. Run frequent experiments. So थोड़े थोड़े टाइम बाद नए नए एक्सपेरिमेंट करते रहने चाहिए. Bigger picture, understand how programmatic fits into entire brand ecosystem. That's all about today. आज की वीडियो में हमने यही सब सीखना था. Thank you so much for watching it till the end. Have a great day ahead. Bye bye.